Hello dear students, today we start with exercise 3.2 of the chapter of linear regression. Question number 1. The following information is obtained from the study to know the effect of use of fertilizer on the yield of cotton. Consumption of fertilizer 10 kg is given to you and yield of cotton per hectare, that is in quintals, given to you. Obtain the regression line of y on x and estimate the yield of cotton per hectare if 300 kg of fertilizer is used. तो यहाँ पे हमको x और y दे दिया गया है and y on x का regression line find करना है and we also have to estimate the production of cotton if the use of fertilizer is in 300 kgs. तो in this question the variables are given. हमने सबसे पहला step again we did, that is we have found out the x bar and y bar, which is 25.29 and 118.57. now दोनों डेसिमल में है and वैल्यूज भी बड़ी है, तो वी आर गोइंग टू यूज द फॉर्मूला ऑफ n सिग्मा uv. थर्ड फॉर्मूला हम यूज करेंगे, बट आई एम नॉट चेंजिंग द स्केल हियर बिकॉज कोई कॉमन डिविजिबल या मल्टीपल नहीं है यहाँ पे, तो वी आर जस्ट गोइंग टू चेंज द ओरिजिन हियर इन दिस क्वेश्चन. तो मैंने यहाँ पे अज्यूम मीन लिया है 24 और 120 को. So after taking assume mean for x as 24, we get this column, that is 28 minus 24 is equal to 4, 35 minus 24 is equal to 11, and so on. We get the total as 9. Whereas v के अंदर हमने 120 लिया and we formed this column, we got the total as minus 10. And the u square that we got is 171. The sigma u square is equal to 171. Now ये particular chapter में आपको v square find करने की तो ज़रूरत नहीं है. So the next column that we prepared was sigma uv, that is we got this and the total is 389. अब तक आप ये basic procedure से तो familiar हो चुके होंगे, so I don't need to explain you how to construct this particular columns, and if you still don't know, please refer to the previous videos that I have made. Now so we are using this particular formula here. B is equal to n sigma uv minus sigma u sigma v upon n sigma u square minus sigma u whole square. तो हमने जो भी वैल्यूज आई थी हमारी उसको इस कॉलम्स में इस फॉर्मूला में डाला, एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गॉट आर b as 2.52. so the regression coefficient is 2.52, which we are going to substitute in the formula of a, that is equal to y bar minus bx bar. y bar अपना ऊपर आया था 118.57 और x bar था 25.29 और b अपना आया था 2.52. so after solving this we get 54.84, that is a. So now we can make our linear regression line, that is y cap is equal to a plus bx, जहाँ पे y cap is equal to 54.84 plus 2.52 x and y cap is equal to, अब यहाँ पे हमको the only thing we need to be watchful about in this question is they have asked us to find out the yield of cotton if 300 kgs of fertilizers are used. तो x is not equal to 300 here, x is equal to 30 because जो x का कॉलम था that was already divided by 10, because ये 10 kgs में दिया था, ये 280 है, ये 35 है. इन लोगों ने चेंज ऑफ स्केल ऑलरेडी करके दिया था हमको, तो we didn't change the scale in this, but उन्होंने किया था. तो यहाँ पे जो 300 kg है, अगर वो x की जगह पे आप 300 इधर ले लेते हो तो your answer will be wrong. So instead of that you have to use 30 because the x value is given in tens, so it will be divided by 10, so that it becomes 30. So after solving this we get y cap is equal to 130.44, मतलब के 130.44 क्विंटल का yield है कॉटन का. Understood? So be very careful for these kind of things. This was your question number 1. Okay, so now we directly move on to question number 4, जिसमें हम चेंज ऑफ स्केल करेंगे फॉर x एंड y दोनों, बिकॉज आई वांटेड टू टीच यू द चेंज ऑफ स्केल मेथड एज वेल. तो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन द कारपेट एरिया इन अ हाउस एंड इट्स मंथली रेंट इन अ सिटी. Carpet area in square meter is given to you and monthly rent is given to you. Obtain the regression line of y on x. Estimate the monthly rent of the house having carpet area of 110 square meters. तो क्वेश्चन तो काफी सिंपल है, बट द वैल्यूज गिवन आर ह्यूज. तो हम पहले x बार और y बार फाइंड करेंगे. इसके लिए
and when we find out the x bar and y bar 90 and 26,000 आया which is perfect integer, but मैं यहाँ पे x minus x bar का फॉर्मूला यूज नहीं कर रहा हूँ बिकॉज हमको यहाँ पे चेंज ऑफ स्केल करना ही पड़ेगा, वरना जो y के कॉलम का कैलकुलेशन आएगा वो काफी बड़ा हो सकता है. So what here I did was just to explain you the method of change in scale. मैंने ये instead of solving with the first formula I've solved it with the third formula, that is uv. आप चाहो तो फर्स्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो इसके लिए, देयर इज नो इश्यूज इन दैट. तो ना चेंज ऑफ स्केल करना है, मैंने अज्यूम मीन जो खुद मीन था उसी को ले लिया. तो u इज इक्वल टू x माइनस 90. यहां तक चेंज ऑफ ओरिजिन हुआ लेकिन वी डिवाइडेड इट एंटायरली बाय 5, तो इट बिकेम चेंज ऑफ स्केल एज वेल. तो यहाँ पे 55 माइनस 90 will be your minus 35 divided by 5 is equal to minus 7. Then 60 minus 90 divide by 5 will be minus 6 and so on. तो टोटल तो इसका जीरो ही आएगा बिकॉज हमने यहाँ पे लिया था माइनस 90 को जो अपना एक्चुअल मीन था, और v का कॉलम भी ऐसे ही बनाया, बट यहाँ पे चेंज ऑफ स्केल किया मैंने 1000 को. नाउ जो चेंज ऑफ स्केल किया, जब x का चेंज ऑफ स्केल किया तो हम इसको cx बोलेंगे 5 को, और जब y का चेंज ऑफ स्केल किया तो इसको हम बोलेंगे cy, दैट इज 1000. तो cx इज इक्वल टू 5 एंड cy इज इक्वल टू 1000, ये आपको याद रखना है. तो हमने चेंज ऑफ स्केल करके जब ये कॉलम बनाया तो उसका भी टोटल जीरो आया. देन हमने u को स्क्वायर किया तो वी गॉट द टोटल एज 238. देन वी प्रिपेयर्ड द कॉलम ऑफ uv, वी गॉट 390. यहाँ तक एज इट इज जो हम कोरिलेशन में कर रहे थे वही सब कुछ सेम है, नथिंग न्यू, बट फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज आएगा बिकॉज वी हैव चेंज द स्केल. तो यहाँ पे करेक्शन फैक्टर यूज करना पड़ेगा अपने को. तो सेम फॉर्मूला जो थर्ड वाला था वही रहेगा, n सिग्मा uv माइनस सिग्मा u सिग्मा v अपॉन n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u होल स्क्वायर. बट यहाँ पे एक एडिशनल करेक्शन फैक्टर दैट इज cy इंटू cx करना पड़ेगा बिकॉज चेंज ऑफ स्केल की वजह से हमारा आंसर चेंज हो जाएगा. नाउ रिमेंबर ये byx हम फाइंड कर रहे हैं, दैट इज y ऑन x, इसीलिए ये cy अपॉन cx आएगा. अगर हम इसमें डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई करते तो ये उल्टा हो जाता, तो ये cx अपॉन cy हो जाता. आई रिपीट अगेन, आई एक्सप्लेन यू अगेन कि यहाँ पे हमने u को डिवाइड किया 5 से और v को डिवाइड किया है 1000 से. तो यहाँ पे जब डिवाइड होता है तो cy अपॉन cx होता है. अगर मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यूज को तो ये चेंज हो जाएगा एज cx अपॉन cy इन द फॉर्मूला. आई नो इट इज बिट कंफ्यूजिंग, बट इसका एक ही उपाय है. अगर आपको एग्जाम में कंफ्यूजन होता है, डोंट चेंज द स्केल एट ऑल. आप एग्जाम में चेंज ऑफ स्केल नहीं करोगे अगर आपको बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूजन हो रहा है. सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा, बट यू हैव द फैसिलिटी ऑफ कैलकुलेटर्स. नाउ पुटिंग द वैल्यूज इन द फॉर्मूला वी गेट दिस, बट अपना cy अपॉन cx वाज 1000 अपॉन 5, एंड जब इसको हमने सॉल्व किया तो b आया 327.73. Putting the values in the formula of a is equal to y bar minus bx bar. अपना y bar 26,000 था, x bar was 90 and b was 327.73. तो a आया माइनस में आया माइनस 3495.7, 3495.7 नेगेटिव. सो नाउ अपना रिग्रेशन लाइन कुछ ऐसा दिखेगा, y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, y कैप इज इक्वल टू माइनस 3495.7 प्लस 327.73 x. तो व्हेन वी पुट इट इनटू दिस पर्टिकुलर वैल्यूज, यहाँ पे हमको ये पूछा है कि 110 स्क्वायर मीटर का एस्टिमेटेड रेंट कितना होगा, तो हमने x को रिप्लेस किया विद 110 एंड व्हेन वी सॉल्व्ड इट वी अराइव्ड एट 32,554.6 रुपीज. दैट इज गोइंग टू बी आवर एस्टिमेटेड मंथली रेंट अगर 110 स्क्वायर फीट का एरिया होगा तो. थैंक यू सो मच. सो नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. The following sample data is obtained to study the relation between the number of customer visiting mall per day and the sales. Number of customers यहाँ दिया है और sales दिया है. Obtain the regression line of y on x. Estimate the sale of the mall if 80 customers have visited the mall on a particular day. ठीक है, तो यहाँ पे अगेन वी फाइंड आउट दी एक्स बार एंड वाई बार. तो एक्स बार अपना आता है 93.33 एंड वाई बार इज 2.40. तो मैंने यहाँ पे चेंज ऑफ स्केल भी किया है और चेंज ऑफ ओरिजिन भी किया है टू फाइंड आउट u एंड v. तो u इज इक्वल टू x माइनस 80 डिवाइड बाई 10, मतलब के जो x था माइनस 80 करेंगे तो माइनस 30 आएगा, डिवाइड बाई 10 माइनस 3 एंड सो ऑन. सो द टोटल ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉलम इज 8.
नाउ यहाँ पे जो v फाइंड करने के लिए, बिकॉज इट वाज इन डेसिमल्स, मैंने इंटू 10 कर दिया तो रिमूव द डेसिमल्स, तो इट इज गोइंग टू बी y माइनस 2 इंटू 10. तो यहाँ चेंज ऑफ स्केल हुआ है लेकिन डिवीजन से नहीं हुआ है, मल्टीप्लीकेशन से हुआ है. सो बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस थिंग. सो वी हैव डन दिस पर्टिकुलर थिंग एंड वी गॉट द टोटल एज 24. रिमेनिंग कॉलम्स हमने एज इट इज बनाया है, जिसमें यू स्क्वायर का टोटल आता है 80 एंड यूवी का टोटल आता है 176. सो दिस इज व्हाट वी गॉट. नाउ वी पुट इट इनटू द फॉर्मूला. और यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज डाल दी, लेकिन जो cy अपॉन cx है, नाउ cx जो था वो तो डिवीजन से ही आया था तो 10 होगा, लेकिन cy जो था वो मल्टीप्लाइड था, तो उसको हम यहाँ ऊपर नहीं डाल सकते, वो 1/10 हो जाएगा. अपने को रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा इसको, तो इट इज इनटू 10. अंडरस्टूड. ये रिवर्स हो जाएगा. मैंने प्रीवियस सम में ही आपको बोला था कि अगर मल्टीप्लीकेशन है तो ये पर्टिकुलर फॉर्मूला चेंज हो जाता है. तो इट इज काइंड ऑफ 1 अपॉन cx इंटू cy. तो दिस इज 1 अपॉन 10 इंटू 10. जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपना जो कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन आएगा 0.02 आएगा. अगेन आई रिपीट कि अगर आप इससे कंफ्यूज होते हो तो अवॉइड चेंजिंग स्केल एट ऑल. तो आपको ये cy अपॉन cx यूज करना ही नहीं पड़ेगा. अंडरस्टूड. नाउ a फाइंड करते बाय पुटिंग द रेलेवेंट वैल्यूज वी गेट 0.53 एंड जब हम ये वैल्यूज पुट ऑन करते हैं अपना रिग्रेशन लाइन आता है y कैप इज इक्वल टू 0.53 प्लस 0.02x. अब इन लोगों ने हमको पूछा है कि 80 कस्टमर्स विजिट करते तो कितना सेल होगा, तो x की जगह पे हमने 80 को सब्सटीट्यूट किया एंड वी गॉट 2.13 because this was the values in lakhs. So 2.13 lakhs we got our sales for a day. So we now move on to question number 6 और यहाँ से start होता है short sums of this exercise. The following information is given for 10 firms running business of clothes in a city regarding the average annual profit in lakhs and average annual administrative cost. यहाँ पे एक टेबल दिया है जिसके अंदर मीन ऑफ x और y है और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और y है, और यहाँ पे कोवरायंस दिया है 10.4. तो यहाँ पे एक शॉर्ट सम की स्पेशल फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी हमको टू फाइंड आउट b. तो b इज इक्वल टू कोवरायंस xy अपॉन sx स्क्वायर. दिस इज सिमिलर टू द फॉर्मूला ऑफ कोरिलेशन जिसमें कोवरायंस xy अपॉन sx इंटू sy करते थे, लेकिन यहाँ पे sx स्क्वायर यूज करेंगे हम. तो अपना कोवरायंस वाज 10.4 एंड sx इज गिवन टू यू 6, लेकिन हमको उसका स्क्वायर यूज करना है, तो डिवाइड बाय 36 वी गेट 0.29. सो व्हेन वी पुट इट इनटू द फॉर्मूला, अब यहाँ से बाकी का प्रोसीजर पूरा सेम है बिकॉज x बार एंड y बार इज ऑलरेडी गिवन टू यू इन द क्वेश्चन. वी जस्ट पुट द वैल्यूज टू फाइंड आउट a इज इक्वल टू y बार माइनस bx बार, वेयर y बार इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन एज 25 माइनस 0.29 into 60, that is your x bar. जब इसको सॉल्व करेंगे we get 7.6 as our a, and now सिर्फ हमको सब्सटीट्यूट करना है it into the regression line, that is y cap is equal to a plus bx. we get 7.6 plus 0.29x. that's our regression line. इसमें कोई assumption नहीं दिया है x का, इसीलिए यही अपना फाइनल आंसर रहेगा. okay, so now we continue with question number 7. The following information is obtained to study the relationship between the average rainfall and the yield of maize in different taluka of Gujarat. जहाँ पे आपको मीन दिया है x और y का, वरायंस दिया है x और y का वरायंस दिया है, नॉट स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट दिया है यहाँ पे. एस्टिमेट द मेज यील्ड व्हेन द रेनफॉल इज 60 सेंटीमीटर्स. तो यहाँ पे एक और नया फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा हमको, वेयर b इज इक्वल टू r इंटू sy अपॉन sx. तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट दैट इज r, दैट इज गिवन टू यू एज 0.82. वी हैव टेकन इट दैट. अब यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करना है sy और sx, और वरायंस दिया है तो इसका रूट करना पड़ेगा. 225 का रूट दैट इज sy इज गोइंग टू बी 15 एंड 64 का रूट दैट इज sx इज गोइंग टू बी 8. तो is equal to 1.54, that is your b. Now a is equal to y bar minus bx bar. Y bar is 180 and x bar is equal to 82. So putting that into those values which we found as well, b, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 53.72 and our regression line will be y cap is equal to a plus bx, that is y cap is equal to 53.72 plus 1.54x. और estimate करना है when 60 centimeter rainfall is there, तो x की जगह पे 60 को substitute करेंगे तो we'll get 146.12
2 quintal per hectare of yield. That's our answer for question number 7. So we move on to the last question of this exercise. The information regarding the maximum temperature and sale of ice cream of 6 different days in summer for a city is given below. मैक्सिमम टेम्परेचर x में डिनोट किया गया है और सेल को y में डिनोट किया है, और इन्फॉर्मेशन में आपको दिया है x बार इज इक्वल टू 40, y बार इज इक्वल टू 1.2, सिग्मा xy इज इक्वल टू 306 एंड sx स्क्वायर इज इक्वल टू 20. ऑब्टेन रिग्रेशन लाइन ऑफ sale of ice cream on maximum temperature and estimate the sale of ice cream if the maximum temperature is 42 degree Celsius. तो यहाँ पे एक और नया फॉर्मूला आएगा, दैट इज b इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार इंटू एन एस एक्स स्क्वायर. अगेन अ सिमिलर फॉर्मूला वाज देयर इन कोरिलेशन जहाँ पे n इंटू एस एक्स एस वाई आता था. यहाँ पे द ओनली डिफरेंस इज वी आर यूजिंग ओनली एस एक्स स्क्वायर. तो पुटिंग ऑल द वैल्यूज जो डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में दिया गया है, वी सॉल्व इट एंड वी गेट आर बी एस 0.15 एंड देन बाकी का प्रोसीजर सेम है, दैट इज ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार. तो हमारा ए नेगेटिव आ रहा है यहाँ पे -48. अगेन पुटिंग इट इनटू द रिग्रेशन लाइन वी गेट -0.48 प्लस 0.15x एंड एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ x इज 42. तो अपना एस्टिमेटेड sale of ice cream will be 1.5 lakhs rupees. That's it for this exercise. जो भी unsolved sums है ये exercise के, I'm giving you in the home assignment and will continue further with this chapter in the next video. Thank you so much.